Hello everyone, welcome to Science Math Point. Okay, so in this video lecture we will discuss the new topic function. Okay, so relation function we already discussed the relations. Now we will discuss the new topic function. Actually, what is the meaning of function we will discuss. देखो, I am writing the definition. Let A and B are two non-empty set. Okay, so क्या लेना ना? You have to take two non-empty set which is A and B. Okay, set A, set B. Clear? Second thing, then the function from A to B. Then the function from A to B is defined as what? Each and every element of A. Set A में जितना भी element है, each and every element of A has one and only one image in B. That means set A में suppose I am taking 3 elements or 4 elements, whatever may be, A, B, C, D, 4 elements, but every element का कितना इमेज होना चाहिए? One and only one, सबका एक ही इमेज होना चाहिए. Then we can tell the function is defined from A to B. That means suppose I am writing here E, F, G, H, I suppose. Okay. Now A to F, B को E, C के साथ G, D के suppose I. Now देखो ध्यान से, is it a function or not? Yes, it is a function. देखो A एलिमेंट का इमेज कौन? F. A का इमेज, ओके, उसको बोलते हैं इमेज. A का इमेज F, B का इमेज E, C का इमेज G, D का इमेज I. That means every element of A, check करो, this is the main definition. Each and every element of A, set A में जितना भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए इन सेट B में. Every element of A has one and only one image in B. Okay, so here we can tell function is defined. This is a function. यहाँ पे क्या है ना, function defined है from A to B. Okay. Suppose I am writing extra element, suppose E और suppose I have K, A B C D K. A का इमेज है एक, B का, C का, D का, लेकिन K का इमेज नहीं है. क्या बोला डेफिनेशन? Each and every element, but K is not related with any element of B. That means it is not a function. On that sense, it will be not a function because K एलिमेंट का इमेज नहीं है. Each and every, जितना भी एलिमेंट A में है, सेट A में हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए सेट B में. ओके, so this is here function is defined, but I am taking another example. Suppose set A, this is set B. Okay, now taking example, suppose A B C D E F G H I J. Suppose A का इमेज सपोज G, B का सपोज G, C का I, D का H, E का सपोज J. ओके, नाउ टेल मी इज इट फंक्शन और नॉट. देखो ध्यान से, A का कितना इमेज बोलो? A का द इमेज ऑफ ए कितना? एक ही है कि नहीं? G. B का इमेज कितना? एक ही और नॉट? दैट मे बी सेम बट वन इमेज ऑफ B. B का इमेज कितना? एक ही इमेज. A का कितना इमेज? एक ही इमेज. C का इमेज I एक, D का इमेज H, that is also one image. E का इमेज J, that is also one image. That means it is a function. It is a function. Clear? Suppose, so here function is defined. Here function is defined. Okay, I am taking another example. Suppose A B, suppose A B C D E F G H I. suppose A का F, A का G, B का E, C का I, D का H. suppose now check करो, is it function or not? Is it function or not? No, it is not a function because देखो A का इमेज F है, सेम A का इमेज G है. दैट मीन्स A का कितना इमेज है? 2 इमेज, इसलिए वो फंक्शन नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स योर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड.
ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, बिकॉज ए एलिमेंट का दो इमेज हो गया। डेफिनेशन के हिसाब से एवरी एलिमेंट का कितना इमेज होना चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज, देन वी कैन टेल दिस इज ए फंक्शन। ओके, सो हियर function is not defined. Function is not defined because why? Because the image of a having two, the image of a having two element है। ओके, अगर आई एम टेकिंग ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल, ए बी, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी, सपोज, ओके, ए का डी, बी का एफ। नाउ टेल मी, इज इट ए फंक्शन और नॉट? नो, इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज सी का इमेज नहीं है। डेफिनेशन के हिसाब से एवरी एलिमेंट का, ए में जितना भी एलिमेंट है हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। बी में एक्स्ट्रा बचो और नहीं बचो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ए में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ओके, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज सी हैज नो इमेज, सी का एक भी इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। क्लियर? So try to note it down. So I think all of you clear the concept of function. Okay, so don't worry, I will send the link in the description. You can write the note. Okay, so don't worry, I will erase. सो फंक्शन का मीनिंग तो पता चल गया, नो प्रॉब्लम। नाउ आई विल टेल ए रियल लाइफ एग्जांपल रिगार्डिंग द फंक्शन। नाउ विल डिस्कस अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल रिगार्डिंग द फंक्शन। देखो फंक्शन का डेफिनेशन और क्या हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल आई विल अरेंज। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है फंक्शन को समझने के लिए? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम राइटिंग द रिलेशनशिप, the relation between child and mother, the relation between child and mother, it is a function. It is a function. You will tell, sir, it is how it is happening? देखो ध्यान से, the relation between child and mother is a function. This is the main concept of function. देखो child, suppose this is child, okay, and this is mother set, child set, mother set, okay, child mother. suppose यहाँ पे दो बच्चे और child 1, child 2, child 3, child 4, चार बच्चे हैं। suppose M1, M2, M3, M4, M5, suppose 5 मदर। रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड मदर कैसे हो सकता है? देखो ध्यान से, चाइल्ड 1 इज लिंक्ड विथ M2, सपोज चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड। देखो ध्यान से, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ टेल मी, इज इट ए फंक्शन और नॉट? देखो ये फंक्शन हो पाएगा कि नहीं। चाइल्ड 1 का कितना मदर? एक ही मदर, विच इज M2। चाइल्ड 2 का कितना मदर? M1। चाइल्ड 3 का देखो कितना माँ। इस बच्चा का कितना मदर है? देखो 2 मदर, M3 है, M5 है। ये पॉसिबल हो सकता है कि? तुम बोलो खुद। एक ही बच्चा का कितना माँ हो सके? एक ही माँ है कि नहीं? 2 माँ का एक ही बेटा कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो फनी हो जाएगा। ओके, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई इट इज नॉट ए फंक्शन। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई इट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, अगर देखो ध्यान से, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, मजा आएगा। देखो ध्यान से, A, B, C, D, this is what? Child set, don't worry, child, this is mother, okay,
D E F G, A का E, B का E, C का E, D का E. Now tell me, is it a function or not? Yes, it is a function. Yes, it is a function. क्योंकि 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 4 चाइल्ड, 4 बच्चे का कितना माँ? एक ही माँ. 1 मदर, 4 चिल्ड्रेन. ओके, 4 चिल्ड्रेन का मदर एक ही है. इट इज पॉसिबल. एक ही माँ का 4 बच्चा, 5 बच्चे, 6 बच्चे हो सकता है, नो प्रॉब्लम. बट एक ही बच्चा का 2 माँ कभी भी नहीं हो पाएगा. ओके, इसलिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है. देखो, हर एलिमेंट का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, हर एलिमेंट का कितना इमेज? एक ही इमेज. ए का कितना इमेज? ई. ए का इमेज ई, दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन. एक ही इमेज. बी का इमेज, एवरी एलिमेंट का इमेज एक ही है. सी का ई, डी का भी ई, दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. ऑल्सो बाय प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. क्लियर? अगर this element, suppose I am telling this element is not linked with this, D element is not linked with any element of second set which is mother set. Now tell me, is it a function or not? No. क्योंकि अगर D जो बच्चा है, okay, suppose this is you, suppose I am joking, I am telling, suppose D element, suppose you are the children, you are the student, but you are not linked with any element of B, that means तुम्हारा कोई माँ नहीं है. हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? एक बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चा का माँ नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ओके, अगर बच्चा पैदा हुआ तो संसार में उस बच्चा का कोई ना कोई तो माँ तो जरूर होगा. हाँ, इसमें क्या डाउट है? ओके, सो इसलिए डी एलिमेंट अगर किसके साथ लिंक नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस बच्चा का कोई ना कोई तो माँ होगा डेफिनेटली. क्लियर? सो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसलिए जितना भी एलिमेंट सेट ए में है, हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द रियल लाइफ एग्जांपल, दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि डी का इमेज नहीं है, डी बच्चा का कोई माँ नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है. क्लियर? सो आई थिंक you can better understand, you understood the concept of function by taking mathematical definition, also practical example which is happening in the real life. Clear? So don't worry, you will write the note, I will give the description link. Okay, so next we will discuss about the concept of types of function. Okay, so as like types of relation, there is a types of function. There are 3 kinds of functions in your syllabus. Okay, so first is your what? 1 function, onto, and both 1 and onto. Okay, so देखो 1 function, onto, 1 and onto, its other name is what? 1 का meaning also injective, second is your surjective, and both 1 and onto मतलब bijective, bijective मतलब by both. Okay, so we'll discuss briefly one by one. देखो फर्स्ट थिंग 1 फंक्शन का मीनिंग क्या है? 1 ओके, जस्ट लाइक 1 रिलेशन, इसी तरह 1 फंक्शन भी है. सो ए फंक्शन एफ such that x tends to y, a function is defined from set x to set y, they are both set, is said to be 1 function if every element of x, suppose this is set x and this is set y. Okay, so every element of x has a distinct image. This is the main concept. क्या ना? distinct image, distinct, separate, okay, different images. So every element of x, suppose I am taking x1, x2. Okay, so there are 2 set. Function is defined from x to y, f is defined from x to y. So every element of x I am taking 2 elements. So x1 के function लगा, so it gives f of x1. Okay, x2 के साथ फंक्शन लगा, it gives f of x2. देखो x2 of f of x2, f of x1. Okay, so what is telling, if every element of x, I am taking 2 elements, every element of x has distinct image. distinct का मीनिंग क्या है?
देखो x1 का इमेज क्या है, f ऑफ x1, x2 का इमेज क्या है, f ऑफ x2। दैट मीन्स x1 का जो भी इमेज आया x2 का सेम इमेज आया कि नहीं है, दूसरा इमेज, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट, अलग अलग, ओके, इन सेट y। देन वी कैन टेल दिस इज वन फंक्शन। देखो वन एलिमेंट के साथ वन एलिमेंट, वन एलिमेंट के साथ वन एलिमेंट, वन वन, ओके। According to the mathematical definition, that is telling for all x1 x2 belongs to x, for all that I am taking two elements x1 x2 belongs to x, let you have to take f of x1 equal f of x2. That means just to take two functions both are equal, f of x1 equal f of x2, but you have to prove that x1 equal to x2, then the function is one function, okay। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। जिसकी तरह हमारा क्या था ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था, यू हैव टू टेक लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बट यू हैव टू प्रूव दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। जैसे कि ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या था, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। इसी तरह यू हैव टू प्रूव दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। इज लाइक दैट वन फंक्शन में क्या करना है हमें, यू हैव टू टेक बोथ फंक्शन सेम, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, यू हैव टू टेक फर्स्ट लेट, बट आफ्टर following some step you have to prove that x1 equal to x2. By taking these two same, you have to prove that both are also same, then we can tell the function is 1 1. देखो how it is possible. Example, suppose function is square function. I am taking the function is what, square function, f of x equal to x square. So square function तो पता है, already have studied in the 11th standard, okay। This is the graph of the square function. Now is it one function or not, we will check, okay। So देखो this is x and this is y set, okay, x set y set, function is defined f। So I am taking suppose -2 ये 2, I am taking element suppose -2 and 2। So -2 के x के प्लेस पुट करो, you will get आउटपुट क्या है, -2 का स्क्वायर 4, +2 का स्क्वायर क्या है, सेम 4 है कि नहीं। ध्यान से सुनो, व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। बट दिस 4 सेम और नॉट, दिस इज f of x1, दिस इज f of x2। नाउ बोथ आर सेम और नॉट, यस, f of x1 इक्वल टू f of x2, नो प्रॉब्लम, 4 सेम। बट x1 क्या है, -2, x2 क्या है, +2, बोथ आर सेम, नो। सो यहाँ पे क्या है ना, x1 is not equal to x2, that means it is not one function। क्योंकि देखो 4 तो सेम है, that means -2 का स्क्वायर करो you are getting +4, +2 का स्क्वायर करो you are getting same +4, -2 का स्क्वायर 4, +4, +2 का स्क्वायर भी 4 है। that means now tell me is it one? No, this is many one, this is many one, ओके। दो एलिमेंट का सेम इमेज आया, इसलिए 1 1 नहीं है, ये डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, इसलिए ये 1 1 नहीं है, मेनी वन है, ओके। सो दैट्स व्हाई द डेफिनेशन इज टेलिंग इफ f of x1 इक्वल f of x2 होगा तो दैट मस्ट बी सेम, x1 इक्वल टू x2। यहाँ पे देखो f of x1 f of x2, बट -2 2 इज नॉट सेम, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1 1, इट इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, clear। So, but don't think that square function is always not one function, no, that is depend upon the set। I am taking which set, this is suppose I am taking integer, that's why I am taking -2 +2। अगर चेक करो स्क्वायर फंक्शन वन फंक्शन है कि on the set of natural number, that means we can't take -2 in the set, suppose first set natural number, second set also natural number, that means we can't take -2, whatever be the element that is plus 1 2 3 4 up to counting, so then it is maybe one function, definitely it is one function, क्योंकि there is no repetition number will come, -2 +2 इसे बना इसी तरह नहीं आएगा, +4 -4 -1 +1 नहीं। so इसलिए this is not one function on the set z रियल नंबर, ओके, इसी तरह। बट नेचुरल सेट में ये 1 1 जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, ओके। वी विल डिस्कस इन द प्रॉब्लम केस। सो नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 1 फंक्शन, दिस इज द मेन थिंग, कीप इन माइंड। और इफ यू वांट टू check more example, देखो
दिस इज वन सेट, दिस इज अदर सेट, ए बी सी डी ई, ए का डी, बी का डी, सी का ई। फर्स्ट थिंग टेल मी ये फंक्शन है कि नहीं? डेफिनेटली ये फंक्शन है। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकंड सेट, नो प्रॉब्लम, ये फंक्शन है। लेकिन ये वन फंक्शन है कि नहीं है? देखो ए का इमेज डी है, बी का इमेज डी है, ई सी का इमेज ई है, बट ये फंक्शन है, ये फंक्शन है क्योंकि एवरी एलिमेंट का वन इमेज है, वन इमेज, बट फॉर वन के लिए क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट इमेज, दैट इज द कॉन्सेप्ट। डिस्टिंक्ट, देखो डिस्टिंक्ट है क्या? नहीं है, क्योंकि ए का जो भी इमेज आया बी का सेम इमेज आया, इसलिए वन नहीं होगा। अगर आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा एलिमेंट, सपोज के ए बी सी के इन फर्स्ट सेट, नाउ टेल मी अंडर सपोज डी ई एफ, बी सपोज ई के साथ, सी एफ के साथ, ए डी के साथ, बी ई के साथ, सी एफ के साथ, बट के इज नॉट लिंक्ड विथ ऑन एनी एलिमेंट ऑफ सेट वाई। नाउ टेल मी इज इट वन फंक्शन और नॉट? तुम बोलोगे यस, नो। पहला है ये फंक्शन ही नहीं है, वन कैसे होगा? क्योंकि के जो एलिमेंट है इसका तो कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सो अगर ये फंक्शन नहीं है तो वन कैसे होगा? Okay, so first thing before checking one onto or both, first to check the given function is function or not. Then we can tell that is one or onto जो भी है. Okay, so I think all of you clear the concept of one function. Okay, so to the second function, onto function. देखो, a function f extends to y is said to be onto or surjective. You can tell if every element of y, सेकेंड सेट का, एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट हैज प्री इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, प्री इमेज ऑफ फर्स्ट सेट. ओके, दैट मीन्स देखो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस इज सेट एक्स, दिस इज सेट वाई, ओके, एंड दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच. एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट has pre-image. Pre-image का मीनिंग क्या है? देखो एक आई एम रिलेटिंग ए के साथ डी, दैट मीन्स ए का इमेज क्या है? डी, बट डी का प्री इमेज, डी इज द प्री इमेज ऑफ ए बी का सपोज इमेज ई है. ओके, सो ई किसका प्री इमेज है? बी का प्री इमेज होगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री इमेज. ओके, नो डाउट. सो क्या बोला ना, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, जितना भी एलिमेंट वाई सेट में है ना, वो सब एलिमेंट किसी का ना किसी का तो इमेज होना चाहिए. दैट मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी के साथ, सी ई के साथ, नो प्रॉब्लम. आई एम इरेजिंग ओनली डी ई एफ, सपोज आई एम टेकिंग ऑल्सो यार के इज लिंक्ड विथ एफ. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ देखो ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं? यस, इट इज ऑन टू फंक्शन, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, डी ई एफ 3 एलिमेंट है, सो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज प्री इमेज. देखो डी का प्री इमेज क्या है? ए. ई का प्री इमेज क्या है? बी एंड सी. ई का प्री इमेज क्या है? बी एंड सी. एफ का प्री इमेज क्या है? के. दैट मीन्स इट इज ऑन टू फंक्शन. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन टू फंक्शन. अगर एक भी एलिमेंट छूट गया, सपोज आई एम टेकिंग एच, सो एच का प्री इमेज क्या है? कुछ भी नहीं है. फर्स्ट थिंग टेल मी ये फंक्शन है कि नहीं? क्लियर, ये तो फंक्शन है, क्योंकि ए का एक ही इमेज, बी का एक ही इमेज, सी का भी एक ही इमेज है, के का भी एक ही इमेज है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज लिंक्ड विथ सम एलिमेंट ऑफ वाई, नो प्रॉब्लम. दैट मीन्स इट इज ए फंक्शन, क्लियर कट. बट चेक करो ये वन फंक्शन है कि नहीं? नहीं, क्योंकि बी का जो भी इमेज है सी का, दैट मीन्स ये मेनी वन, नो डाउट. बट ये ऑन टू है कि नहीं? ये ऑन टू नहीं, क्योंकि सेट सेकेंड सेट में एक एलिमेंट छूट गया. सेकेंड सेट में हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए. प्री इमेज, ये किसी का ना तो किसी का इमेज जरूर होना चाहिए. ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन टू फंक्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट ये एच किसका इमेज है? किसी का भी नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है. ऑन टू कब होगा? जब जितने भी एलिमेंट सेट वाई में है वो किसी का ना किसी का भी इमेज होना चाहिए. ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन टू फंक्शन. दैट मीन्स देखो फॉर मैथमेटिकल डेफिनेशन, फॉर ऑल y belongs to y, so this is small y element, capital Y sets, for all y belongs to y, then there exists an element x
then there exists some element x in set x such that क्या होगा, f of x equal to y होगा, f of x equal to y होगा. दैट मीन्स देखो यहाँ पे f of x क्या है, दिस इज f of x, y equal to f of x, नो डाउट. f of x equal to y, so this all are what, y. so जितने भी एलिमेंट है, सपोज f, दिस इज d e f g, सो यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट. सो 4 एलिमेंट, दिस इज 4 एलिमेंट. ओके, सो 4 एलिमेंट एंड दिस इज फंक्शन में कितना, f of x में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, एंड दिस इज y ऑल आर 4. सो 4 इक्वल टू 4 माने f of x इक्वल टू y होना चाहिए. क्या बोला, मैं सुनो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, जितना भी एलिमेंट सेट y में है ना, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x सच दैट f of x इक्वल टू y. दैट मीन्स वी कैन टेल, तुमको पता है ना डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन. सो DEF, सब देखो DEF, सो यहाँ पे कितना पेयर, A, D, B, E, C, E, K, F. सो दैट मीन्स डोमेन इज व्हाट, A, B, C, K. रेंज क्या है, DEF. अगर H छूट गया, सपोज देयर इज H छूट गया, सो यहाँ पे डोमेन क्या है, A, B, C, K. रेंज क्या है, DEF, बट H नहीं है. लेकिन को डोमेन क्या होगा, को डोमेन में क्या है ना, हर एलिमेंट जाएगा को डोमेन में, जितना भी एलिमेंट सेकंड सेट में है, दैट इज को डोमेन. सो जब को डोमेन इक्वल टू रेंज होगा, दिस इज द अदर कॉन्सेप्ट, रेंज इक्वल टू को डोमेन. दैट मीन्स सेकेंड सेट में जितना भी एलिमेंट है, अगर हर एवरी एलिमेंट किसी का ना किसी का भाई इमेज होगा, तो ये ऑन टू होगा. तो ओके, सो दैट मीन्स जस्ट कीप इन माइंड वन थिंग, जितना भी एलिमेंट सेकेंड सेट में है, वो हर एलिमेंट किसी का ना किसी का भी इमेज होगा ऑफ सेट एक्स. ओके, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन तब कहलाएगा. ओके, सो बट यू हैव टू अंडरस्टूड दिस लाइन. यू हैव टू रिमेंबर, फॉर ऑल y belongs to y, for all y belongs to y, then there exists an element in x such that क्या होगा ना, f of x इक्वल टू, जैसे कि रेंज इक्वल टू को डोमेन. इसका मीनिंग क्या है ना, रेंज को डोमेन सेम होगा. ओके, देन वी कैन टेल द फंक्शन इज व्हाट, ऑन टू फंक्शन. देन कमिंग टू नेक्स्ट इज बोथ 1 1 and on 2, 1 1 and on 2, or you can tell it is what, bijective function. 1 1 and on 2 function, or it is bijective. So bijective कब होगा, जब a function is defined to 1 and on 2, if this is both, क्या क्या होगा, ये 1 1 भी होगा and on 2 भी होगा. This is very simple definition. A function is said to be 1 1 and on 2 if the function is both 1 1 and on 2. Then it is known as the bijective or 1 1 and on 2. So this function no problem. अगर a function 1 1 हो गया, on 2 हो गया, that means that is both. That means we can tell that function is what, bijective function. Bijective कब होगा, जब a function is injective and surjective. Injective plus surjective, that means it is bijective. Okay, in short, beach. Okay, so no doubt, injective plus surjective equal to bijective. Okay, this is दिस लास्ट फंक्शन का डेफिनेशन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर एक फंक्शन इंजेक्टिव हो गया, सर्जेक्टिव हो गया, ऑटोमेटिक ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. ओके, अगर इंजेक्टिव हो गया, सर्जेक्टिव नहीं होगा, दैट मींस इट इज नॉट बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव के लिए बोथ होना चाहिए, इंजेक्टिव होना चाहिए और बोथ एंड सर्जेक्टिव भी होना चाहिए. इसलिए ये क्या होगा, 1 1 and on 2 फंक्शन. क्लियर? So I think this is the concept of types of function, 1 1 on 2 and both 1 1 and on 2. Okay, there are some other function, into function भी है, many one function, one function, many one and on 2, 1 1 and on 2 कब होगा. So we'll see in next example. देखो ध्यान से, देखो some examples concept of 1 1 on 2, many one. देखो I am taking 6 Venn diagram for understanding the concept of function. देखो, so first thing देखो, this diagram इज which फंक्शन, 1 1 के साथ on 2 भी हो गया कि और कुछ. देखो
यहाँ पे क्या है देखो, ए का इमेज एक, बी का इमेज भी एक, सी का इमेज भी एक, दैट मीन्स इट इज क्लियरली 1 1, नो डाउट इट इज। फर्स्ट थिंग चेक करो, जो 6 वेन डायग्राम हमने ड्रॉ किया है ना, ये फंक्शन है कि नहीं फर्स्ट चेक करो कि ना, क्योंकि फंक्शन के लिए फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट है वो हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ फंक्शन। देखो क्लियर कट ऑल आर फंक्शन, then we will judge which function is which kind of function, 1 1 और 1 2 जो भी है। सो पहले देखो, ए का इमेज एक, बी का इमेज डी, सी का इमेज जी, दैट मीन्स इट इज क्लियरली which function, 1 1 function, it is 1 1 function, no doubt 1 1। also it is onto or into, just to check, ये तो 1 1 हो गया, ये तो मेन वन नहीं है। 1 1 के साथ ये क्या है, ऑन टू है कि इनटू है। सो इनटू क्या है ना, याद रखो, अगर एक भी एलिमेंट छूट गया सेकेंड सेट में, दैट इज द इनटू फंक्शन। बट ऑन टू क्या है ना, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑन टू एंड इनटू। इनटू में क्या है ना, डेफिनेटली कुछ ना, नॉट ओनली वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट अगर छूट गया तो दैट इज इनटू फंक्शन। ऑन टू क्या है ना, हर एलिमेंट किसी का ना किसी का इमेज होगा। ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इनटू एंड ऑनटू। देखो यहाँ पे एफ का प्री इमेज नहीं है, दैट मीन्स इट इज इनटू फंक्शन। ये 1 1 भी है एंड इनटू फंक्शन, 1 1 एंड इनटू फंक्शन, कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट देखो, दिस इज व्हिच फंक्शन, ए का एक इमेज, बी का एफ, सी का एच, डी का जी, दैट मीन्स क्लियरली इट इज 1 1। फर्स्ट थिंग इट इज क्या है ना, 1 1 है एंड इट इज इनटू और ऑन टू, क्लियरली इट इज ऑन टू, क्योंकि हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ तो प्रीमियस है, दैट मीन्स इट इज ऑन टू फंक्शन, नॉट इनटू। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इनटू एंड ऑन टू। इनटू में एलिमेंट छूट गया, ऑन टू में नहीं छूटना चाहिए। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ 1 1। दिस इज 1 1, दिस इज ऑल्सो 1 1, बट इट इज इनटू, दिस इज ऑन टू, 1 1 एंड इनटू, 1 1 एंड ऑन टू। देखो दिस इज व्हिच फंक्शन, ये 1 1 है क्या, नहीं, क्योंकि ए का ई, बी का ई, दैट मीन्स दिस इज मेनी वन, दिस इज मेनी वन फंक्शन, क्लियरली इट इज मेनी वन फंक्शन। एंड ये इनटू है कि ऑन टू है, चेक करो, ये इनटू है क्योंकि एच का प्रीमियस नहीं है, दैट मीन्स इट इज इनटू फंक्शन, मेनी वन एंड इनटू। देखो ध्यान से, मेनी वन एंड इनटू। कमिंग टू दिस एग्जांपल, ए का एक ही इमेज, बी का एक ही इमेज, सी का भी से, हाँ ये ए का एफ, सी का एफ, डी का जी, दैट मीन्स इट इज मेनी वन। देखो ए का एफ, सी का एफ, दैट इज दिस इज व्हिच फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन। एंड इनटू और ऑन टू, ये ऑन टू है क्योंकि कुछ भी एलिमेंट नहीं छूटा, सो इट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन एंड ऑन टू। देखो ये मेनी वन एंड इनटू, ये मेनी वन ऑन टू, 1 1 इनटू 1 1 ऑन टू, मेनी वन इनटू मेनी वन ऑन टू। क्लियर? नाउ चेक करो, दिस इज व्हिच फंक्शन, हर एलिमेंट का एक इमेज, दैट मीन्स इट इज क्लियरली 1 1, इट इज क्लियरली 1 1 फंक्शन, 1 1 एंड ये ऑन टू और इनटू, ऑन टू है, यस ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू। इसी तरह सेम एग्जांपल आई थिंक, देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 1 और मेनी वन, चेक करो, देखो ए का ई, डी का ई, इट इज क्लियरली मेनी वन, इट इज क्लियरली मेनी वन है। एंड ये क्या है, इनटू और ऑन टू, नाउ इजीली टेल इट इज इनटू, क्योंकि आई का प्रीमियस नहीं है, इट इज इनटू फंक्शन, मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। क्लियर हो गया? सो हाउ टू जज व्हिच फंक्शन इज व्हिच काइंड बाय टेकिंग वेन डायग्राम, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड आई थिंक। ओके, so from this function which one is bijective function, tell me, bijective कौन? yes, which function is both 1 1 and onto, not into, these two function are bijective। देखो bijective, 1 1 and onto, 1 1 and onto, है कि नहीं? but just to note it down, what in bijective function क्या है ना, both set में same element है, चेक करो, फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट है सेकेंड सेट में उतना ही एलिमेंट है। दिस इज द नोट पॉइंट। क्या है ना, इन बाइजेक्टिव फंक्शन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट मस्ट बी सेम, ए बी सी डी ई एफ जी, 4 एलिमेंट, देखो 5 एलिमेंट। अदरवाइज ये देखो, थोड़ा सोचो, 1 1 के लिए हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, ऑन टू के लिए
हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए. दैट मीन्स इट इज क्लियरली वी कैन अंडरस्टूड द number of elements in both set must be same for bijective function. Just to note it down. क्या है ना, in bijective function a number of elements in both set must be same. Okay, just to note it down for future. Okay, so I think all of you clear the concept of types of function. In next class video we'll discuss about some numerical problems, how to check one function, how to check onto function or bijective function. Okay, so I think all of you clear this types of functions. Okay, so if you like this video, just to subscribe my channel to get more update on the video. Okay. Up to that, take care, bye bye.